With the name of Allah, who is the most beneficent, the most merciful, the most omnipotent, omniscient, omnipresent. Assalamu alaikum and good morning, student. Today we are going to study the poem Once Upon a Time written by Gabriel Okara. First of all, let's read about the poet in order to know about the poet as well as the background of the poem. Gabriel Okara was born in western Nigeria in 1921. Okara may be described as a highly original poet, uninfluenced by other poets. Original poet and uninfluenced by other poets. It means that Okara was actually a pure and an original poet, and he didn't imitate other poets. He didn't copy others. He was very much natural in his style. In 1979, he was awarded the Commonwealth Poetry Prize. Commonwealth is actually a foundation in which Commonwealth senior writer unearth the talent and they appreciate the new talent and skill of the new writers and authors. Okara shows a concern regarding what happens when the ancient culture of Africa is faced with the onslaught of Western culture. Onslaught of Western culture means attack of Western culture. It means he was very much worried when a traditional African and civilization took over by Western culture. It vanished. It stand for Western culture. Like Western culture vanished, the sincerity, innocence, piety, truthfulness of the time. And it brought hypocrisy, jealousy, and greed. Here, in this poem, he compares the present time and the past. He compares the behavior of the present people with the behavior of the past people. He says that in the previous time, people used to laugh with their hearts and eyes. They used to help one another. They used to meet with wholeheartedly and warmth. But nowadays, people laugh without emotions or without any zeal. They become very opportunist and materialistic. In this poem, the poet also advises his son by comparing childhood and adulthood. He says that in childhood, a child is very much honest, loving, sincere, loyal, and trusting. And in childhood, there is no troubles, no pain, no worries. While in adulthood, hypocrisy, jealousy, opportunism, materialism come into play. And an adult person gets all kind of troubles, worries, tensions, greed, and all these things come when he becomes adult. We will discuss all these things stanza by stanza. Let's begin the poem. Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes, but now they only laugh with their teeth. While their eyes block cold eyes surge behind my shadow. Once upon a time, son, एक दफा का जिक्र है बेटे. They used to laugh with their hearts. वो दिल की गहराइयों से हंसते थे. They stands for people of the past and laugh with their eyes. और अपनी आंखों से हंसते थे. But now they only laugh with their teeth. लेकिन अब वो सिर्फ दांतों से हंसते हैं. While their eyes block cool eyes. जबकि उनकी बर्फ जैसी ठंडी आंखें सर्ज behind my shadow. मेरे साए के पीछे तलाश करती हैं. दो सिचुएशन जो है वो बयान किए गए हैं इस टेंस में. पहले लाइंस में 2-3 लाइंस में जो है वो बयान किया गया है कि माजी में लोग जो है वो दिल के साथ जो है वो हंसते थे.
उनकी आंखों में जो है वो जज्बात होती थी, जब वो लोगों से मिला करते थे, हंसते थे। लेकिन अब लोग जो है वो हंसते हैं, उनकी दांत जो है वो दिखाई देती है, लेकिन उनकी आंखों में जज्बात नहीं होती, जज्बात से खाली होती है। उनकी आंखें जो है वो ठंडी होती है और वो बग़ैर मफ़ाद के, बग़ैर फ़ायदे को जो है वो आपको मतलब ना तो मुस्कुराहट देती है और ना जो है वो ये आपको हंसी देते हैं। यहाँ पे ये लास्ट जो 2 लाइन है, यहाँ पे पर्सनिफिकेशन जो है यूज़ हो रहा है, फिगर ऑफ स्पीच है। वाइल देयर आइज ब्लैक कूल आइज सर्च बिहाइंड माई शेडो। यहाँ पे आइज ब्लैक कूल आइज को जो है वो पर्सनिफाई किया गया है, ह्यूमन जो है वो मतलब क्वालिटी दिया गया है कि वो जो है वो मतलब सर्च कर रहा है। वी डिस्कस्ड personification in previous classes. Let me repeat again what is personification? When we give human qualities to non-living things. Okay, ji. There was a time indeed they used to shake hands with their hearts, but that's gone some. Now they shake hands without hearts, while their left hands search my empty pockets. There was a time indeed, बेशक एक वक्त ऐसा था, they used to shake hands with their hearts, वो गर्मजोशी से हाथ मिलाया करते थे। But that's gone son, लेकिन वो वक्त गुजर गया है बेटे। Now they shake hands without hearts, अब वो बेदिली के साथ हाथ मिलाते हैं। While their left hand search, जबकि उनके बाएं हाथ तलाश करते हैं my empty pockets, मेरी खाली जेबों। इसका भी जो है वो मतलब यहाँ पे भी मतलब कंपैरिजन किया जा रहा है, मुवाजना किया जा रहा है कि माजी में लोग मतलब गर्मजोशी से हाथ मिलाया करते थे, दिल के साथ जो है वो मिलते थे, लेकिन अब लोग जो है वो मतलब जब मिलते हैं तो उनका दिल नहीं होता, वो गर्मजोशी से नहीं मिलते, अगर मिलते भी हैं तो मतलब अपने फ़ायदे ढूंढते, अपने मफाद ढूंढते हैं, मौका परस्त लोग बन चुके हैं। Feel at home, come again, they say, and when I come again and feel at home once, twice, there'll be no thrice, for then I find doors shut on me. Feel at home, come again, अपना घर समझे, दोबारा तशरीफ़ लाए, दोबारा जो है वो आए। They say, and when I come again and feel at home once, twice, वो कहते हैं और जब मैं आता हूँ घर में एक मर्तबा, 2 मर्तबा, there will be no thrice, कोई तीसरी मर्तबा जो है वो नहीं आएगी फिर। For then I find doors shut on me, क्योंकि तब मैं अपने लिए घर के दरवाजे बंद पाऊंगा। इसका मतलब ये है कि आजकल के जो लोग हैं वो आपको कहेंगे कि हमारे घर तशरीफ़ आओ, ये आपका अपना घर है, इसे अपना घर समझें, लेकिन आप जब एक दफ़ा आओगे, दूसरी दफ़ा आओगे, तो तीसरी दफ़ा जो है वो आपको मतलब उस तरह मतलब आपको खुशामदीद नहीं कहेंगे, वो माता चढ़ाएंगे, वो आपकी प्रेजेंस को जो है वो मतलब एंजॉय नहीं करेंगे। माजी में लोग जो है वो एक दूसरे के घर आते जाते थे, एक दूसरे के घर मतलब रिश्तेदार जो है वो मतलब रातें गुजारते थे, सब इकट्ठे रहते थे, जॉइंट फैमिलीज़ होती थी। लेकिन आजकल जो है वो मतलब लोग बिल्कुल बदल चुके हैं, कोई जो है वो किसी का ख्याल नहीं रख रहे हैं, हर कोई जो है बहुत ही ज़्यादा इस वर्ल्ड में जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा बिज़ी हो चुका है, हर कोई अपना मफाद ढूंढ रहा है, हर कोई जो है वो पैसे की तरफ जो है वो मतलब जा रहे हैं, लालच बढ़ चुकी है, हिर्स जो है वो बढ़ चुकी है।
तो जब आप किसी के घर जाते हैं एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तो तीसरी दफ़ा ज़रूर आपको महसूस होगा कि ये लोग जो है वो मेरे प्रेजेंस को एंजॉय नहीं कर रहे, ये मुझ पे तंग आ चुके हैं। सो आई हैव लर्नड मेनी थिंग्स सन। आई हैव लर्न टू वेयर मेनी फेसेस लाइक ड्रेसेस, home files, office files, street files, host files, with all their confirming smiles like a fixed portrait smile. So I have learned many things son. बस मैं बहुत कुछ चीज़ें जो है वो सीख चुका हूँ बेटे. I have learned to wear many faces. मैंने बहुत से चेहरे जो है वो बदलना सीख लिए हैं. Like dresses, लिबास की तरह, कपड़ों की तरह, घर का चेहरा, होम फेस, ऑफिस फेस, दफ्तर का चेहरा, स्ट्रीट फेस, गली का चेहरा, होस्ट फेस, मेज़बान का चेहरा, विद ऑल दियर कन्फर्मिंग स्माइल्स, इन तमाम हालात के मुताबिक मुस्कुराहटें में सीख चुका हूँ. कन्फर्मिंग मीन मुताबिक, अकॉर्डिंग, लाइक अ फिक्स पोर्ट्रेट स्माइल, जैसे नस्बशुदा तस्वीर की मुस्कुराहट. इसका मतलब है कि मैं भी, मतलब ये राइटर कह रहा है कि सोसाइटी का असर मुझ पे भी हो गया है. मैं भी, मतलब पहले अफ्रीकन सोसाइटी में जो है वो रहता था. वहाँ पे लोग मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल होते थे, सोशल होते थे, फ्रेंडली होते थे, एक दूसरे से मिलते जुलते थे, एंजॉय करते थे. लेकिन जब मगरिब की सकाफ़त यहाँ पे आई तो अफ्रीकन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर जो है वो आपस में मिल गई. क्योंकि वेस्टर्न कल्चर जो है ज़्यादा एडवांस थी, तो उसने जो है वो हमारी ही कल्चर में आर्टिफिशियलिटी, ऑर्नामेंटलिटी, डबल स्टैंडर्ड जो है वो मतलब लाए. तो मैं भी जो है वो मतलब ऐसा हो गया हूँ. अब मैं भी जो है वो मतलब चेहरे बदलता हूँ. घर में मैं एक तरह से होता हूँ, गली में दूसरी तरह होता हूँ, ऑफिस में जो है वो मेरा चेहरा, मेरी बिहेवियर, मेरी आदत जो है वो बदल जाती है. मैं अकॉर्डिंगली जो है वो लोगों से मिलता जुलता हूँ. और मैंने भी जो है वो मतलब मुनाफिकत, हिपोक्रेसी जो है वो सीख ली है. और यहाँ पे लास्ट लाइन में ये भी कह रहा है कि मैं भी उस तस्वीर की तरह हूँ, जो मतलब एक तस्वीर जब आप लगा लेते हैं और वो मतलब मुस्कुराता है या हंसता है, तो बस वो हंसता रहेगा, जो भी आएगा वो हंसता रहेगा. अगर हालात मतलब अच्छे हो, बुरे हो, गम के हालात हो, खुशी के हालात हो, गम का माहौल हो, खुशी का माहौल हो, वो पिक्चर जो है वो ऐसा ही रहेगा, वो हंसता रहेगा, वो मुस्कुराता रहेगा. तो इसी तरह ये राइटर कह रहे हैं कि इस तरह मैं भी हो चुका हूँ. एंड आई हैव लर्न to love only with my teeth and shake hands without my heart. I have also learned to say goodbye when I mean good riddance, to say glad to meet you without being glad, and to say it's been nice talking to you after being bored. And I have learned to, और मैं भी सीख चुका हूँ, टू लव ओनली विद माई टीथ, सिर्फ दांतों के साथ हंसना. मैं भी सीख चुका हूँ दांतों के साथ हंसना. एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हार्ट, और बेदिली के साथ जो है वो हाथ मिलाना, और गर्मजोशी के बग़ैर जो है वो हाथ मिलाना. आई हैव ऑल्सो लर्न टू से गुड बाय, मैं खुदा फेस कहना भी सीख चुका हूँ. व्हेन आई मीन गुड रेडेंस, जब मेरा मतलब जान छुड़ाना होता है. रेडेंस मीन छुटकारा पाना, जान छुड़ाना. टू से ग्लेड टू मीट यू, ये कहना कि आपसे मिलकर खुशी हुई. विदाउट बीइंग ग्लेड, बग़ैर खुश हुए. एंड टू से इट्स बिन नाइस टॉकिंग टू यू, और ये कहना कि आपसे बातचीत करके जो है वो मज़ा आया. आफ्टर बीइंग बोर्ड, बोरियत महसूस करने के बाद, तंग होने के बाद. ये हिपोक्रेसी, ये मुनाफिकत, ये डबल स्टैंडर्ड जो है वो मैं भी सीख चुका हूँ. ज़ाहिरी बात है, जब आप एक सोसाइटी में रहते, एक माहौल में रहते हैं,
तो आप पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका असर होता है। इसीलिए जो है वो बड़े कहते हैं कि मतलब इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता है। सोबत जो है वो मतलब अगर आपकी अच्छी होगी तो आप पे उसकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असरात ज़रूर होंगे। इसी तरह अगर आप किसी बुरे माहौल में होंगे, एक बुरी सोसाइटी में जो है वो होंगे, तो उसकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो आप पे असरात ज़रूर मुरतब होंगे। इसीलिए कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे लोगों के साथ बैठे और अपनी ज़िंदगी को जो है वो मतलब इस तरह की डबल स्टैंडर्ड मुनाफिकत से बचाए। बट ब्यूटी, बट बिलीव मी सन, आई want to be what I used to be. When I was like you, I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to love. For my love in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. But believe me son, लेकिन मुझ पर यकीन करो बेटे, I want to be what I used to be. मैं वो बनना चाहता हूँ जो मैं माजी में था। When I was like you, जब मैं तुम्हारी तरह था। I want to unlearn all these muting things. मैं इन तमाम चीज़ों को बुलाना चाहता हूँ जिसका इजहार नहीं कर सकता। मैं इन तमाम ख़राब चीज़ों का जो है वो मतलब इन तमाम खामोश चीज़ों का या इन तमाम जो है वो मतलब बेकार चीज़ों को बुलाना चाहता हूँ। Most of all, I want to relearn. सबसे बढ़कर मैं दोबारा सीखना चाहता हूँ। रीलर्न, दोबारा सीखना। अनलर्न मीन भूलना, रीलर्न मीन दोबारा सीखना। हाउ टू लव, फॉर माई लव इन द मिरर, कि किस तरह, हाउ टू लव मतलब कि किस तरह हंसा जाता है, फॉर माई लव इन द मिरर, क्योंकि मेरी हंसी आईने में, शीशे में, शोज ओनली माई टीथ लाइक अ स्नेक्स बियर फेंग्स, ऐसे होती है क्योंकि मेरी हंसी आईने में ऐसी होती है जैसे शाम के जहरीले दांत, शाम के जो है वो कोकले दांत। बियर मतलब नेकेड को कहते हैं, नंगे को कहते हैं, कोकले को कहते हैं, यहाँ पे आप जहरीले भी जो है वो कह सकते हैं। फेंग्स जो है वो दांतों को कहते हैं, शाम की जो दांत होते हैं। यहाँ पे ये राइटर जो है वो मतलब लिमेंटेशन कर रहा है, मातम कर रहा है अपने माजी पे, कि माजी का दौर जो है बहुत अच्छा था, माजी के लोग अच्छे थे, तो मैं दोबारा जो है वो बच्चा बनना चाहता हूँ। दोबारा मतलब आपकी तरह अपने बेटे को, क्या उसका जो बच्चा बेटा होता है वो छोटा होता है, और छोटे बच्चे बहुत ही ज़्यादा मतलब नाइस होते हैं, वो मुनाफिकत नहीं करते, वो झूठ नहीं बोलते, उनमें जेलसी, ग्रीड, अवेयरनेस और डिसऑनेस्टी, अपॉर्चुनिज्म, मटेरियलिज्म और ये चीज़ें जो है वो नहीं होती। तो ये भी कहता है कि मतलब मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, और जो चीज़ें मैं सीख चुका हूँ, मतलब हिपोक्रेसी, जेलसी, एंगर, ग्रीड, ये चीज़ें जो है मैं दोबारा बुलाना चाहता हूँ, और मैं दोबारा जो है वो मतलब प्योर बंदा बनना चाहता हूँ। क्योंकि जब मैं शीशे में देखता हूँ, अपने आप को देखता हूँ, अपने बारे में सोचता हूँ, तो मुझे बहुत अजीब लगता है। या मैं शीशे में हंसता हूँ तो मेरे जो दांत होते हैं वो बिल्कुल शाम की दांतों की तरह जो है वो जहरीले दिखाई देते हैं। So, show me son, how to love. Show me how I used to love and smile once upon a time when I was like you. So show me son, बस मुझे दिखाओ बेटे, how to love, कि किस तरह हंसा जाता है। Show me, दिखाओ मुझे, how, कि किस तरह I used to love and smile, कि मैं किस तरह जो है वो हंसा करता था और मुस्कुराया करता था। Once upon a time when I was like you, एक वक्त था जब मैं तुम जैसा था, एक वक्त था जब मैं तुम्हारी तरह था। वही बात है, दोबारा जो है वो मतलब अपनी जो सेल्फिश एटीट्यूड है, ख़ुद गर्जी है, आर्टिफिशियल जो एटीट्यूड है मतलब दिखावे की, ये चीज़ें जो हैं वो मतलब इस राइटर को बोर कर चुकी है। लोगों की अपनी जो एटीट्यूड है उसे वो मतलब बुलाना चाहता है, दोबारा जो है वो दिल से गर्मजोशी से जो है वो मुस्कुराना चाहता है, हंसना चाहता है।
और अपने बेटे की तरह जो है वो दोबारा बनना चाहता है। अच्छा, आप लोग जो है उस पोएम को अच्छी तरह से जो मतलब स्टडी करें, देखें, जहाँ भी प्रॉब्लम है तो फिर आप लोग जो है वो इंडिविजुअली मुझे वॉइस मैसेज जो है वो कर सकते हैं। और मैसेज करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप अपना नाम और क्लास सेक्शन जो है वो ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता चले कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो मुझसे पूछ रहा है, ठीक है। और कल जो है वो कोई वीडियो लेक्चर इंग्लिश की जो है वो नहीं होगी। कल इसमें डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों ने इसका थीम बनाना है और उसमें से कोई भी स्टैंज़ा जो है आप अपनी मर्ज़ी के अपने अल्फाज में पैराफ्रेज करें और वो मुझे आप लोग जो है वो वॉइस मैसेज में सेंड करेंगे। तो आप लोगों की प्रेजेंस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।